यस मैम स्टार्ट करिए। ओके, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। बीतेगा ये दौर और नया दौर जल्द आएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मुसाफिर तुम, एक दिन ये जमाना तुम्हारा गीत गाएगा। Good morning, each one of you. I extend my warm greetings to Professor Neelam Sharma, Director Mate, Professor S.S. Deswal, Dean Academics, Professor Namita Gupta, HOD CSC, Professor Rajveer Mittal, HOD AAA, Professor M.L. Sharma, HOD IT, Professor S.K. Mathur, HOD ECE, Professor V.N. Mathur, HOD MAE, Dr. Vaibhav Jain, HOD ME, Professor Chandra Prakash, HOD Applied Science, Dr. Amit Gupta, HOD MBA, faculty members, staff members, and dear students. On behalf of Maharaja Agreshan Institute of Technology, we Garima Sharma and Supriya Sharma welcome you all on the 2 days webinar on well-being and technology trends during COVID times. For the last 3 to 4 months, the whole world is suffering from pandemic corona. We all are under severe psychological pressure and stress. This webinar has been organized to release the psychological stress of the students before the commencement of new academic session. Besides, this webinar is aimed at dissemination of initiatives taken particularly by DST to improve the research potential of technical institutions. During this hour of need, this pandemic should be utilized as an opportunity of research for building sustainably systems. Some of the green solutions will also be discussed during the webinar. To commence today's proceedings, we have Professor Neelam Sharma, Director MATE. Director ma'am has completed her PhD and MTech in Electronics Engineering from UP Technical University, Lucknow. She did her BE in ECE from Thapar Institute of Engineering and Technology in 1985. She has guided 5 PhDs and many dissertations and projects. She has published 75 papers and 5 books and has completed many projects in collaboration with World Bank, AICTE, MHRD, and GGS ये कौन IBP. है? Now I request you, ma'am, for the welcome speech. Over to you, ma'am. So I am very happy that all the students, we are all together here today on this Microsoft Teams platform. The technology has changed many things, and I welcome all of you on this webinar. Students, I request you to please mute, and I can hear many sounds at the back. Vinay, just mute. Respected Founder and Chief Advisor, Dr. Nand Kishore Garg, Chairman, MATE Society, Shri Vineet Gupta ji, Executive Chairman, Shri S.P. Agarwal ji, Dean Academics, Professor S.S. Deswal, Rajveer Mittal ji, HOD Electrical Engineering Department, Professor M.L. Sharma, HOD IT, Professor Namita Gupta, HOD CSC, Professor V.N. Mathur, HOD Mechanical and Automation Engineering, Professor Sunil Mathur, HOD ECE, Dr. Amit Gupta, HOD MBA, Dr. Vaibhav Jain, HOD Mechanical Engineering, Professor Chandra Prakash, Professor Kusum Sharma, Professor Shikha Saxena, Mr. J.R.M. Tripathi, faculty, staff of MATE, and of course, last but not the least, my very dear students of Maharaja Agreshan Institute of Technology. We have organized a 2-day webinar for all of you on the topic well-being and technology trends during COVID times. The past few months have been extremely terrifying for the human race, but now the world is reviving. In fact, we can say getting used to and trying to fight the odds of COVID as given. Now, because of this national emergency due to pandemic corona, we are all
under great psychological pressure and stress. जो लोग बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनका अलग तरीके का स्ट्रेस है. जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक, उनके पास अलग तरीके का स्ट्रेस है. मगर सभी लोग, right from the small child to the elderly person, they are all under stress, locked down inside their homes. This webinar has been organized to release the psychological stress of students and staff before the start of the new academic session. Besides, this webinar is aimed at dissemination of initiatives and technological trends to provide solutions of COVID-19. तो ब्रह्म कुमारी से हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जो इन 2 दिनों में आप लोग सुनेंगे. हम लोगों ने एक EFDT प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था अपनी फैकल्टी के लिए. वो उसमें बहुत सारे जो मतलब हमारे पास टॉक्स थे, एक्सपर्ट टॉक्स थे, दे वर रियली हाईली अप्रिशिएटेड. Some of them we are repeating in these 2-day webinars. कुछ हमारे पास स्ट्रेस रिलीजिंग टॉक्स हैं और कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं. एक आप ही लोगों के बीच का बच्चा भी है, आयुष गुप्ता, who had passed out in 2018 and he has designed a solution with his team for COVID-19. So here I would like fight COVID-19. अभी आप लोग सभी के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत सारे आइडियाज जनरेट हो रहे होंगे. कुछ भी अगर आपके माइंड में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, कोई रोबोट, कोई वेंटिलेटर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द हेल्थ सेक्टर. अगर किसी के भी माइंड में कुछ भी आता है तो आप अपनी फैकल्टी के साथ में लिंक होकर के यू वर्क ऑन दैट एंड ट्राई टू innovate a device that can be used during this pandemic. In these 2 days, we have speakers from USA, from Germany, from Kerala and other parts of India and abroad. These renowned speakers are Dr. K.K. Agarwal, President HeartCare Foundation of India. He will be talking about the various precautions that you are supposed to take during the pandemic. You don't have to panic. You have to be, you have to do all the things that are required to control the pandemic. We have Dr. E.V. Swaminathan. He's a professor of mechanical engineering from Kerala, a very good and renowned speaker of the Brahma Kumaris. He will be also talking in technical terms as well as stress releasing terms, and he'll be talking in 10. म्यूट हो गई है. Ma'am, your audio is not coming. We can't hear you, ma'am. Neela ma'am, your microphone is on mute. Is it okay now? Right, ma'am. Yes. तो काफी देर से नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा रिपीट करूं बैकग्राउंड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So just quickly, I will just repeat that the speakers that are going to speak in these 2 days are the renowned speakers, Dr. K.K. Agarwal, President HeartCare Foundation of India. He will be telling us the various precautions we are supposed to take during this during COVID times. In case अगर हमें COVID हो भी जाता है
तो भी हमें क्या क्या करना है इन सारी बातों को बहुत अच्छे से बताएंगे। और उसके बाद डॉक्टर E.V. स्वामीनाथन, a professor of mechanical engineering from Kerala. He will also give a very nice talk, a very seasoned and nice speaker to release your stress. He will be talking. Then we have Brahma Kumari, Dr. Damini, with her sweet and melodious voice. She is also going to address you. Then we have Brahma Kumari Rajni Behan, who has coordinated these stress releasing expert lectures. We have Mr. Ashish Rakheja, MD Eon Consultants. He will be talking about some technical solutions of COVID-19. We have Professor William from USA. He will be there to give you an idea about how ultraviolet rays can kill the virus. Ultraviolet light in the air conditions, once it is put in the air conditioning, it can kill all the virus in a room. So he will be giving a very at length talk. Then we have Mr. Ayush Gupta. He is an alumni of MATE. आप ही लोगों के बीच का बच्चा है वो, और 2018 का पास आउट है, एक कंपनी में नोएडा में काम करता है, और उसकी कंपनी ने गवर्नमेंट का 10,000 यूनिट वेंटिलेटर, लो कॉस्ट वेंटिलेटर उन्होंने डिजाइन किया है, और 10,000 वेंटिलेटर्स उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत जल्दी हाल ही में दिए हैं. So they will be all be sharing their views in these 2 days. I acknowledge the efforts of Mr. Anil Daya, coordinator of this event, Dr. Namita Gupta, Mr. Alok Sharma, Mr. Anupam, Mr. V.K. Saini, Mr. Neelam ma'am, again your voice is not coming. Your audio is off. Okay, it is switching on by itself. It's switching off by itself. Now it's okay? Yes, Yes, ma'am. yes, Am I yes, audible? ma'am. Now it's Yes, okay. ma'am. Now you're audible, ma'am. Okay, so the technical team, Dr. Namita Gupta, Mr. Alok Sharma, Mr. Anupam, Mr. V.K. Saini, Mr. Hemant Tulsiani, I thank them all for making efforts in organizing this webinar. Then we have Ms. Garima Sharma, Ms. Supriya Sharma, who are comparing the registration and feedback team under Dr. V.N. Mathur, Kanchan Modgil, and Sonam Kurana, and of course, Dr. S.S. Deswal for the e-certificates that he is going to design and send to all of you after completion of this seminar. On this occasion, I would like to take the occasion to read out a message from founder and chief advisor. Just a minute. 2-3 बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ. एक तो ये कि शुभ मंगल घड़ी आ गई. भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को है. आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई. सभी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, स्टाफ मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई. भारत के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि इतनी शुभ घड़ी इतने सालों की मेहनत के बाद में आई है और राम मंदिर का निर्माण अयोध्या नगरी में होने जा रहा है. इसके अलावा कल JRD टाटा की 116th बर्थ एनिवर्सरी थी. तो JRD टाटा के कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ. इसको ध्यान से सुनिए, मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ. नो सक्सेस और अचीवमेंट, no success or achievement is material in material terms is worthwhile unless it serves the needs or the interests of the country and its people and is achieved by fair and honest means. Again I will read it. कोई भी सक्सेस या अचीवमेंट, जितने भी पैसे का हो, जितना भी हो, नो सक्सेस और अचीवमेंट इज in material terms is worthwhile unless it serves the needs or interests of the country and its people and is achieved by fair and honest means. That's all. One more thing I would just like to say. काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे बीच हैं, more than 1500 हमारे पास रजिस्ट्रेशंस हैं. अभी काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ भी गए हैं. मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि इस साल थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस हमारा डिले हुआ है
और MBA की एडमिशंस ऑलरेडी चल रही हैं। बीटेक की एडमिशंस हमारे पास JEE सितंबर में शेड्यूल्ड है। जो भी बच्चा मेट में एडमिशन लेना चाहता है, आप लोगों के जो भी संपर्क में आता है, आपका छोटा भाई बहन हो या आपके आसपास में कोई भी हो, तो immediately they can talk to Dr. SS Deswal, they can talk to me, they can talk to their HODs, और आप लोग इस प्रोसेस को मोबिलाइज कर सकते हैं. So this is all that I wanted to say. I wish you all the best. Our classes for the next session are going to start from the 20th of August on the online mode. We have made all the preparations. किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी आती है टेक्निकली, they should talk to their mentors. Proper classes will be organized. आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि सारी क्लासेस को आप लोग सीरियसली टेकअप करिए घर पे बैठ करके, and gain your knowledge so that at the proper time you can all get good placements. Best of luck. Enjoy the 2-day seminar. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your pulse of wisdom. Now I would like to invite Professor S.S. Deswal, Dean Academics. Professor S.S. Deswal joined MATE in 2006 and is presently working as Dean Academics in this institute with an experience of more than 22 years in teaching. He is also a member of numerous professional societies and journals of standing. He has Garima ma'am, you are on mute. Hello, am I audible? Yes. Thank you so much, ma'am, for your pulse of wisdom. Now I would like to invite Professor S.S. Deswal, Dean Academics. Professor S.S. Deswal joined MATE in 2006 and presently working as Dean Academics in the institute with an experience of more than 22 years in teaching and administration. He is also a member of numerous professional societies and journals of standing. He has published more than 70 papers in international journals and conferences. I request you, sir, for welcome address. Over to you, sir. Thank you, madam. I'm audible? Yes, Yes, sir. Okay. Good morning, everyone. Namaskar. Good morning, First of all, sir. let me briefly introduce Maharaja Agharsen Institute of Technology to all our eminent speakers and guests. Maharaja Agharsen Institute of Technology is a self-financing engineering institute of Guru Gobind Singh Indraprastha University with 3 NBA accredited program, that is EC, CSC and MA, and is also ISO certified institute. MATE was established in 1999 by Maharaja Agharsen Technical Education Society, promoted by a group of well-known personalities with an aim to promote quality education in the field of technology and management. Since then, MATE has grown from strength to strength to emerge as one of the top technical institutes. The vision of the institute is to nurture young minds in a learning environment of high academic value and imbibe spiritual and ethical values with technological and management competence. Maharaja Technical Education Society is contributing to society. Sir, you are mute. Sir, you are not audible. VK Saini ji, hello. Yes, sir, now audible. Yes, sir, आवाज आ रही है करो, सर. अपने आप की म्यूट हो रहा है यार, प्लीज चेक इट. ओके सर, मैं चेक करता हूँ सर. So about society, Maharaja Agharsen Technical Education Society is contributing to society not only through education but also participates in giving back to society, like recent contribution a sum of rupees 51 lakhs to PM Cares Fund to fight against COVID-19, which was personally acknowledged by our Prime Minister Sri Narendra Modi ji. He gave a phone call to our founder chairman Dr. Nand Kishore Garg ji to thank him for the generous contribution. As we all know, COVID-19 pandemic has led to an unprecedented crisis situation leading to a lot of stress and anxiety. We also understand that stress and anxiety about a new disease and the resulting uncertainty can be overwhelming and can lead to strong negative emotions in us. Health advisors such as social distancing, health advisories such as social distancing can make people feel isolated and lonely
and can further magnify stress and anxiety. To cope with this mental stress and improve our well-being, MATE is conducting a 2-day webinar on well-being and technology trends during COVID times. In the event, we would explore techniques to deal with human mind, that is a source of all perceptual miseries and pleasures. This webinar has been organized to manage the psychological stress of staff and students before the commencement of the new academic session. While starting the event, first and foremost, I welcome Dr. Nand Kishore Garg, founder and chief advisor MATES, who is our guiding light and continuous source of inspiration. I would also like to welcome Sri Vineet Kumar Gupta ji, Chairman MATES, Sri S.P. Agarwal ji, Executive Chairman, Sri T.R. Garg ji, General Secretary, Sri Mohan Kumar Garg ji, Joint Secretary, Professor M.L. Goyal ji, Vice Chairman Academics, Sri Gyanendra Srivastav ji, Chief Executive, and all other honorable trust members. I also welcome Professor Neelam Sharma, Director, Maharaja Agar Singh Institute of Technology, all head of the departments, Professor Namita Gupta, Professor Rajbir Mittal, Professor M.L. Sharma, Professor S.K. Mathur, Professor V.N. Mathur, Dr. Amit Gupta, Professor Chandra Prakash, Dr. Vaibhav Jain, Dr. Anil Kumar, Professor Kusum Sharma, विनय देसवाल जी is not audible. देसवाल हेलो जी आपका आवाज नहीं आ रही है. आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं. Yes. Okay, Garima ma'am, carry on. Thank you, sir, for your motivational words. In this session, we have a combination of technical and education with the field of spirituality. Our next speaker for this session is Brahm Kumar Dr. E.V. Swaminathan. Dr. E.V. Swaminathan is a BTech, DDH, PGDT, MSc Psychology, MSc Counseling, MBA, and a PhD. He has been an engineering and management faculty for 16 years before Garima ma'am. Hello, Garima ma'am. Hello, Garima ma'am. सैनी जी, Sir, is something wrong? I think वो disconnect हो गई हैं. Okay, I'll continue. In this session, we have a combination of technical education with the field of spirituality. Our next speaker for this session is Brahm Kumar Dr. E.V. Swaminathan. Dr. E.V. Swaminathan is a BTech, DDH, PGDT, MSc Psychology, MSc Counseling, MBA, and a PhD. He has been an engineering and management faculty for 16 years before dedicating his life as co-operate, trainer, and coach. He has addressed more than 100 national and international conferences of engineers, doctors, researchers. नैतिक, माननीय और सामाजिक मूल्यों से निर्मित राष्ट्रीय ध्येय है डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन का, मैं ऊर्जा हूँ, मुझे प्रकृति सुकून देती है. प्रिया म्यूट हो गई है. विनय सर, सुप्रिया आपकी आवाज नहीं आ रही है. अनम्यूट नहीं हो रहा था. हेलो. अरे आलोक अनुपम जी सिस्टम को देखिए. सर ये हेलो प्रॉब्लम आ मिस्टर आलोक अनुपम सर ये बार म्यूट हो रहा है अपने आप. बंद हो रहा सब कुछ. मैंने टेक्निकल टीम को बोला है, वो देती है. मेरी मृकुटी के बीच में परम आनंद अलौकिक केंद्र है. इसी एहसास से डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन ने एक सभ्य, निष्ठावान, सात्विक समाज के निर्माण की मुहिम छेड़ी है. नमस्कार.
on behalf of the Scientists and Engineers Wing and the Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya, I extend a very, very hearty welcome to all of you, my dear divine brothers and sisters. आप सभी का मैं बहुत दिल से, स्नेह से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। How is your well-being? आप सब कैसे हैं? हालचाल कैसा है? मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। I am also fit and fine. I'm right now in God's own country. I'm in the north part of Kerala, which is called as Kannur. और यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रकृति के बीच में मैं यहाँ पर हूँ। और आज आपको मैं प्रकृति के साथ साथ एक सुंदर यात्रा पर लेकर चलूँगा। Friends, the topic for today's discussion is the science of well-being. खुशनुमा जीवन का विज्ञान क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विज्ञान किसको कहते हैं? What exactly is science? Basically, science tries to find out the fundamental laws which is there in the nature. दोस्तों, हमारे प्रकृति में या इस पूरे पृथ्वी में जो सैद्धांतिक सत्य है, उस सत्य की खोज विज्ञान करता है। एक बार हमने उस सैद्धांतिक सत्य को समझ लिया, उस सत्य का जो एप्लीकेशन है वो हमारे इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट्स करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो इस सत्य को कहीं कोई सिस्टम या कोई प्रोडक्ट पे करते हैं ताकि हमारा जीवन बहुत बहुत खुशनुमा हो, आनंदमय हो। इनफैक्ट ऑल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर मेड टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू दिस एंटायर ह्यूमैनिटी। तो दोस्तों, आज हम इस विज्ञान को समझते हुए, कुछ इंजीनियरिंग विषयों को समझते हुए हम अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बना सकते हैं, इस सुंदर यात्रा पर हम चलेंगे। ओके, नाउ मैं इस झूले पे बैठा हूँ और ये झूला जो है ना, झूलता है। द स्विंग मूव्स लाइक अ पेंडुलम। इसके पीछे भी एक विज्ञान है। मैं आपको उस विज्ञान को समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट नाउ आई एम इन दिस पोजीशन। हम धीरे से इसको पीछे लेकर आते हैं और फिर एक जितना हम पीछे इसको पुश करते हैं तो एक मोमेंटम मिलता है, मास इनटू वेलोसिटी। जिस मोमेंटम के द्वारा हम जितना हाइट को कवर कर सकते हैं, जितना ऊंचाई को कवर कर सकते हैं, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एंड देन पोटेंशियल एनर्जी अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज हाउ द स्विंग मूव्स टू एंड फ्रो। करेक्ट? ये तो था विज्ञान। लेकिन आज हम इस स्विंग के विज्ञान को समझते हैं अपने जीवन के लिए, क्यों कहा जाता है लाइफ इज ऑल्सो लाइक ए स्विंग। हमारा जीवन भी एक झूले की तरह है। इसमें भी बहुत ऊंचाइयां होती है, कभी कभी हम नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन हमें समझना क्या है इस पॉइंट में, आज इस सारी जो अवस्था है, उस अवस्था में हम लोग वी आर द लोवेस्ट पॉइंट। हम सबसे नीचे वाले पोजीशन पर हैं, जहां माय फीट्स आर ग्राउंडेड, मेरा पैर जमीन पर है। अब जब ये लॉकडाउन सब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तब शायद हम 40 या 50 दिन पहले थे उसके हम पीछे वाले सिचुएशन में होंगे। कोई बात नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन फोकस ये होना चाहिए कि हम जितना पीछे मुड़कर और जितना हम इस समय पर अपने आप को पुश कर सकते हैं, उतना हम ऊंचाई में जा सकते हैं। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के समय को हमें यूटिलाइज करना है, उस एनर्जी को, उस शक्ति को अपने में लेकर आके, ताकि हम जितना अपने आप को पुश करें। And that's what we are going to understand. समय बहुत बहुत important है, although we are at the lowest point of time, but this is very very important. मुझे विश्वास है कि पिछले 40 या 50 दिन में आपने समय का सदुपयोग जरूर किया होगा। अगर नहीं भी किया है, ये पूरा सेटल होने में कुछ टाइम लगेगा। Can we make the best usage of our time? मैं आप सबको बहुत खुशी से बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना समय कैसे स्पेंड किया। I always try to be happy. And one of the things which I tried was to play carom games. मुझे हर दिन सुबह अपने पापा के साथ, who is 84 years of age, बहुत सुंदर गीत संगीत बैकग्राउंड में रखकर मैं और मेरे पापा जो हैं कैरम्स खेलते हैं। Friends, I welcome all of you to play a round of caroms with स्वामी भाई। चलिए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग एक गेम कैरम्स साथ में खेलते हैं। Okay? It is said that life and time are the most effective teachers. जीवन और समय बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक हैं। Life teaches us how to make the best use of time
And time, when time comes, tells us the importance of life. जीवन हमें ये सिखाता है दोस्तों कि हम समय का कैसे सदुपयोग करें, और समय समय आने पर जीवन का मूल्य बताता है। तो चलिए, let's not waste time, let's play this wonderful game of caroms. दोस्तों, अगर हम कैरम का गेम खेल रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि उसके नियम क्या है। What are the rules? What are the regulations? And that is what is called as science. देखिए, पहले ये पूरा जो कॉइन्स जो थे ना, बहुत स्टेबल कंडीशन में थे, बहुत स्थिर कंडीशन में थे। स्ट्राइकर आता है, उसको हिट करता है, इमीडिएटली अस्थिरता की तरफ जाता है। इट्स ऑल अबाउट अनस्टेबिलिटी, एंट्रोपी बढ़ जाता है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है। लेकिन इसके बाद नियम क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है। स्ट्राइकर हर कॉइन को हिट करता रहता है और कॉइन धीरे धीरे अपने जो पॉकेट्स हैं, जो उनका अपना डेस्टिनेशन है, वहां वो पहुंचता है। फिर उसके बाद सारे कॉइन्स जो होते हैं फिर से बोर्ड में आ जाते हैं एंड वी आर अगेन एबल टू सी अ वेरी स्टेबल कंडीशन। दिस इज द रूल ऑफ कैरम्स। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 1-1.5 महीने पहले हमारा जीवन बहुत स्थिर था, हम बहुत अपने कंफर्ट जोन में सुखदायी थे। अचानक एन इनविजिबल वायरस, एक अदृश्य अणु कहीं से आता है और हमारे जीवन को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देता है। इट मेक्स अ लाइफ एब्सोल्युटली अनस्टेबल। प्रश्न उठता है कि उसने किसको अनस्टेबल किया। तो हम अनस्टेबल सबसे पहले हुए ना दोस्तों, वो हमारे अपने मन को, हमारे संकल्प, क्या होगा, कैसे, कब, कहां, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, और इतने सारे संकल्प जो हमारे मन में आजकल आते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे जीवन को अगर स्थिरता में फिर से अगर लेकर आना है, तो उसकी टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, उस विधि को हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने मन को फिर से स्टेबल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हम और आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। उस सब्जेक्ट का नाम था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट। इनफैक्ट हमको ये सिखाया गया था इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। हमारे जीवन में भी वो स्थिरता बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे मन में कितने संकल्प चलते हैं, हमारा जॉब का क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या, बच्चों का एडमिशन होगा, बच्चों की पढ़ाई को लेकर देयर इज सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी। और ऐसे समय पर विधि जो है कि हम अपने मन को इतना तरफ छिन्न भिन्न हो रहा है, उसको स्थिरता की तरफ लेकर आए। और कैसे लेकर आएंगे, जब हमारे मन को हम एक बहुत अच्छे दोस्त बनाते हुए उनको समझाएंगे। कैन वी मेक आवर माइंड आवर वेरी बेस्ट फ्रेंड। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने मन को कैसे दोस्त बनाएं, वो हम आगे जरूर सीखेंगे। और हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं, हम नीचे उतरते हैं और इस प्रकृति के सानिध्य में मन को कैसे अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं।
Vinay sir, there is no audio in this. We cannot hear. Is mute. आवाज नहीं आ रही। सॉरी टू से ऑडियो इज नॉट ऑडिबल। चलिए, अभी तक जो हमने समझा है अब हम उसका अनुभव करेंगे। हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी होता है ना, थियोरी के बाद प्रैक्टिकल। तो अभी मन में जो जो संकल्प है उसकी हम गति को कम करेंगे और उसकी संख्या को कम करेंगे। जैसे हमने सीखा मन की भाषा चित्र है, आप उस चित्र को बनाना, और जितना समय आप उस चित्र को देख सकते हैं और अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं, दैट इज योर पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान रखेंगे जब हम वो चित्र बनाते हैं तो जो भावना है उस भावना को भी, उस इमोशंस को भी फील करना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं कहूँगा सुबह सुबह का सूर्योदय, तो ये संकल्प आपके मन तक पहुँचेगा, आपका मन उसका चित्र बनाएगा। तो आप देखना पहाड़ी के पीछे से लाल रंग का सूर्योदय, तो वो इमोशंस को भी फील करना। तो कौन सी इमोशंस को आप जनरेट करेंगे? तो सुबह सुबह का सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक है। राइट? और ऐसे ऐसे करके हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और प्रयोग करेंगे। आप चाहिए तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब बैठे हुए मन के द्वारा सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए, पहाड़ी के पीछे से विश्वास का प्रतीक है। ठीक हो जाएगा। उस पहाड़ी को देखिए, खुले आसमान को देखिए, जो
देखिए। आप उस सुंदर से बगीचे को आप देखिए, फूलों को देखिए, रंग बिरंगे फूलों को देखिए, खुशबू को महसूस करिए और ये श्रेष्ठ संकल्प करिए कि मुझे जीवन ऐसे ही खुशबूदार बनाना। अभी जैसे अपने आंखें खोली, कैसा लगा? संकल्प श्रेष्ठ, बहुत विशेष चित्र और अच्छी भावनाएं। इट्स अ फीलिंग ऑफ वेलबींग। ऐसे समय पर ये हो सकता है कि अचानक फिर एक संकल्प आए। ठीक है, मैंने अच्छा फील जरूर किया, लेकिन परिस्थिति तो वैसे ही है, मेरी चुनौतियां तो वैसे ही है, उसका कैसे निवारण हुआ? प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग। तब मैं होगा पानी जो मारते हैं तो क्या होता है, अचानक बहुत सारी लहरें आती लगती है और फिर से हलचल की स्थिति हो जाती है। अगर हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, नथिंग टू वरी, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब हम एक काम करते हैं, हम पानी के नजदीक जाकर इसका रहस्य समझते हैं कि ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए। ओके, हाउ डू आई गेट द सॉल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम? और शांत रहने से सॉल्यूशन कैसे मिलता है, दिस विल फाइंड आउट। चलिए आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर के नजदीक एक छोटा सा नदी है, ये बहुत प्यारा सा नदी है। इट्स अ वेरी पीपल फ्रेंडली स्ट्रीम हम बोल सकते हैं। पहाड़ी से वो पानी आता है और ये बहुत स्वच्छ पानी है और पूरा साल तो बहता रहता है। अभी थोड़ा सा पानी कम हो गया है, राइट? हम इस फ्लूइड डायनेमिक्स को यहाँ समझते हैं, राइट? एक छोटा सा पत्थर है, जब हम इस पानी में डालते हैं तो देखिए कितनी लहरें उठती है, करेक्ट? हमारे जीवन में भी, हमारे मन में जब इसी प्रकार का कोई संकल्प चलता है तो इसी प्रकार की लहरें चलती हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब, क्यों, राइट? ये सारी लहरें उठने लगती है। तो शायद जीवन में ये फ्लूइड डायनामिक्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है। हमने बचपन में एक विज्ञान पढ़ा था which was called as the Archimedes principle of buoyancy. We say the buoyant force is equal to the weight of water displaced, right? ये हमने बचपन में सीखा है और इसी आधार पर बचपन में हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया गया है कि why does the ship sail and how does a nail sink? तो हमें ये बात समझ में आई as per मेरे पास अरे हैंगे। अगर हम जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक 6 महीने का बच्चा, देखो कॉलेज से ऑनलाइन बुला रखे हैं। गिरीश भाई, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्राडीकार्डिक रिस्पांस या ब्राडीकार्डिक रिफ्लेक्स। 6 महीने के बच्चे को अगर हम पानी में डालते हैं, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, डूबेगा नहीं। वो अपने श्वास को पकड़ सकता है और वो अपनी आंखें खुली रख सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो जन्म के 9 महीने जो वो माँ के गर्भ में था, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में इसी को महसूस कर रहा था। वो अपने श्वास को बंद करके रखा था, उसका अभ्यास उसको उस समय पर महसूस होता है। अगर यही 6 महीने का बच्चा जब बड़ा होता है और 10 साल का बन जाता है और वो अगर स्विमिंग पूल में जाता है तो सबसे पहले वो पानी को देखकर इमीडिएटली डर जाता है और उसके मन में ये संकल्प आता है कि नहीं, मैं डूब जाऊंगा। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि 10 साल तक, चाहे वो माता पिता हो या हम शिक्षक हो या समाज हो, उसको बार बार ये डर का संकल्प देते हैं, पानी है, तुमको कुछ हो ना जाए, तुम डूब जाओगे। और जैसे हम बार बार का हम संकल्प करते हैं दोस्तों, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। इट बिकम्स अ रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग, राइट? और डर और भय किसी भी प्रॉब्लम का निवारण नहीं है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में अगर हम बार बार नेगेटिव संकल्प करेंगे तो हमें अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? मैं आज आप सभी को एक खुशखबरी देता हूँ। हर ताले की एक चाबी होती है और जिस चाबी
जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो चाबी आपको ही मिलेगी। हम ढूंढते भी हैं लेकिन मिलती क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जीवन की तरह है, इट्स लाइक अ लॉक, और आप चाबी ढूंढ रहे हो और चाबी आपको ही मिलेगी। लेकिन ये जो चाबी है ये पानी के अंदर है। ओके, अब अगर पानी को आप हलचल करते हो तो आपको चाबी दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको बहुत धीरज रखना होगा। जैसे ही ये पानी शांत होती है तो आपको आपकी चाबी खुद दिखाई देगी। चलिए हम देखते हैं। राइट, ये चाबी है, हम इस पानी को डालते हैं। चाबी अभी नीचे है, पानी एकदम शांत है तो मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं इस पानी को हलचल करूंगा तो मुझे चाबी दिखाई नहीं देगी। इसीलिए जीवन का विज्ञान ये है, फॉर वेल बीइंग, मन को शांत जैसे ही हम करेंगे, स्थिर करेंगे, तो मेरी जो परिस्थिति की जो ताला जो अटक गया है उसकी चाबी मुझे खुद मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की चाबी कौन सी है, अर्थात चाबी मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ। इस पर चिंतन करना बहुत बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स फाइंड आउट द कीज ऑफ आवर लाइफ। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ। राइट दोस्तों, बचपन में मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि आपको इंजीनियर बनना है। तो मैं पापा से बड़े प्यार से पूछता, पापा मैं इंजीनियर क्यों बनूं? पापा कहते थे अगर आप इंजीनियर बनोगे तो आप बहुत सफल होंगे, आप बहुत धन कमा सकते हो, आप नामी ग्रामी बनेंगे। राइट, तो दोस्तों इस चक्कर में पता क्या हुआ, इस चक्कर में आई अंडरस्टूड व्हाट इज HMT। इंजीनियरिंग में हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसको कहते थे HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर। मेरे साथ आप सबका भी अनुभव होगा कि इस लक्ष्य सफलता, धन और नामी ग्रामी बनने में हम कितना ज़्यादा क्रोध, कितना ईर्ष्या और अहंकार का अनुभव करते हैं। दिस इज व्हाट इज द हीट एंड मास दैट वी हैव बीन ट्रांसफरिंग ऑल अक्रॉस। राइट, कहते हैं द कोरोना वायरस हैज शेकन अस टू अवेकन अस। राइट, हमें क्या बात समझने को मिली, हमने और आपने सोचा कि हम इस पूरे पृथ्वी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा वायरस ने, चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो, कितने भी धनी क्यों ना हो, कितने भी नामी ग्रामी क्यों ना हो, अदृश्य वायरस ने हमको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया चिंतन करने के लिए कि हमारी कैसे अंदर की प्रकृति कैसी है। दोस्तों, व्हाटएवर वी आर सीइंग आउटसाइड, द आउटसाइड नेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड। बाहर की प्रकृति हमारे अंदर की प्रकृति का प्रतिबिंब है। अगर हमें बाहर की प्रकृति को ठीक करना है तो वी हैव टू मूव इनवर्ड और अपने लक्ष्य को और रिफाइन करें। हमारा जीवन का लक्ष्य, तो हमें अपने जीवन के लक्ष्य को फिर से उसको रिफाइन करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा लक्ष्य है वैसा लक्षण होगा। राइट, और हमने सबने लॉ ऑफ कर्मा को समझा है। इट इज अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव का। जैसे जैसा लक्ष्य को अगर हम ठीक करेंगे तो शायद हम भी ठीक हो जाएंगे और ये सारी समस्त पृथ्वी भी ठीक हो जाएगी। तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चे बताओ आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, सर ऑप्शन सर। मैंने कहा कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है? सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैंने कहा ओके, आई गिव यू 4 ऑप्शंस और आप सभी बच्चे सोच समझकर सही ऑप्शन को चूज करना। ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी साइंटिस्ट, ऑप्शन सी मैनेजर एंड ऑप्शन डी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सारे बच्चों ने बड़े खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, सर ऑप्शन डी लॉक कर दो, अ गुड ह्यूमन बीइंग। राइट माय डियर फ्रेंड्स, उन बच्चों का जवाब सुनकर लगा कि हमें बड़ों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राइट, H फॉर होलिस्टिक एंड M फॉर मीनिंगफुल। हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ होना, हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हम सफल जरूर हैं लेकिन सारे विश्व को भी वो मदद मिले। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और
जब हम गुड ह्यूमन बीइंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब हम होलिस्टिक लक्ष्य होता है, तो सबसे बड़ा सिम्टम हमें दिखाई देता है, वी बिकम रियली हैप्पी। और जब हम अपने जीवन के मीनिंग, एम फॉर मीनिंग को समझते हैं, पता ही ना मेरे में हुई ना ज्वाइन देख तू कर गया। एक बहुत सुंदर विषय सिखाता हूँ। उस विषय का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। थोड़ा कठिन विषय है, तो 3-4 महीने में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और 4 महीने के बाद जब मेरे बच्चे तैयार होते एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए, जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलेगा 10 प्रश्न और एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर, तो वह जिंदगी है। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीवन का लक्ष्य आज तक जो हमने सक्सेस रखा था, अब इट शुड बी पीस एंड हैप्पीनेस। और इसके लिए अपने जीवन को हमें ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा, right? Therefore, we again have to come down to the subject of design. We have to redesign, we have to reframe, we have to recolor, and most important, we have to do re-engineering to make our life wonderful, beautiful, holistic, and meaningful. I welcome all of you to the subject of design. Design के विषय में आप सभी का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे आजकल होता है ना दोस्तों, डिज़ाइनर ड्रेस होता है, डिज़ाइनर किचन होता है, डिज़ाइनर फर्नीचर होता है, डिज़ाइनर कार होता है और डिज़ाइनर घर भी होता है। तो ये सारे डिज़ाइन के अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोडक्ट। ओके, लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम अपने जीवन का डिज़ाइन कैसे करें। तो जीवन का डिज़ाइन करने के लिए हमें उसका विज्ञान को समझना ज़रूरी होगा और हमें ये समझना होगा कि वर्तमान समय पर कौन से इमोशंस का ट्रेंड चल रहा है, समाज में, देश में, विश्व में किस प्रकार की भावनाएं हो रही हैं और भविष्य में कैसे परिस्थिति हो सकती है, उसको देखते हुए वर्तमान समय पर हमारे जीवन का डिज़ाइन होना चाहिए। तो अभी और भविष्य में जो इमोशंस चल रहे हैं उसको मैं ABC करके कैटेगराइज करूँगा। A मीन्स एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता, फिक्र चल रहा है। B इज द सिचुएशन इज रियली बैड, परिस्थिति खराब है, भविष्य में दोस्तों शायद और भी खराब हो सकती है। C फॉर क्राइसिस, केओस एंड एब्सोल्यूट कंफ्यूजन, चारों तरफ भ्रम, अनिश्चितता और संकट का समय है। तो जब ये परिस्थिति है तो हमारा जीवन का डिजाइन भी पॉजिटिव ABC, सकारात्मक ABC। A मीन्स जितना चारों तरफ एंग्जाइटी है उतना A मीन्स अटेंशन। दोस्तों, चिंता नहीं करनी है लेकिन चिंतन करना है। और किस बात का चिंतन करना है? स्वचिंतन करना है, राइट? इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ मी बट आई कैन टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विद इन मी। चारों तरफ क्या चल रहा है मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं स्व पर कंट्रोल करना मैं सीखूं। ये डिजाइन का पहला प्रिंसिपल होना चाहिए। दूसरा B, सिचुएशन इज गोइंग टू बी बैड, इज गोइंग टू बिकम वर्स। ऐसे समय पर हमारे जीवन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, हम ऐसे कर्म करें जिससे हमको ब्लेसिंग्स मिले। B फॉर ब्लेसिंग्स, दुआएं। कहते हैं दोस्तों, जितनी हम दुआएं कमा सकते हैं, दुआएं जैसी दवाई नहीं। और यही दुआएं जो है हमारे लिए भविष्य में सुरक्षा का कवच बनेगा। C, केओस और कंफ्यूजन के जगह पर हम क्लीन बने, क्लियर बने और क्रिएटिव बने। तो इस आधार पर हम अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हैं। और ऐसे जीवन का डिजाइन करने के लिए एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, भारत का एक बहुत प्राचीन टेक्नोलॉजी है और उसको कहते हैं राजयोग। और इस राजयोग के विधि को समझकर हम अपने जीवन को बहुत सुखदायी और आनंदमय बना सकते हैं। राजयोग 2 शब्द से बना है, एक है राज और दूसरा है योग। राज मीन्स
रहस्य, द सीक्रेट। राज मीन्स द किंग, राजा, और योग मीन्स संबंध जोड़ना, इट्स रिलेशनशिप। तो राज्यों को भी हम ABC के द्वारा समझते हैं। ए मीन्स एटेंशन, कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। जैसे एक गाड़ी होता है और ड्राइवर होता है। ड्राइवर जब तक गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी चलता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से उतरा तो गाड़ी रुक जाता है। हमें राजयोग में ये बात को समझना है कि मैं कौन हूँ। ये शरीर जो है ना, एक बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर कौन है? और ड्राइवर है जिसको हम कहते हैं मैं आत्मा। उसको आत्मा कहें, सोल कहें, रूह कहें, फिजिक्स की भाषा में उसको हम ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि मैं आत्मा समझने से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट हेल्प मी? बहुत सिंपल है दोस्तों। सपोज एक ड्राइवर जो है गाड़ी में बैठे बैठे दिन रात गाड़ी चलाता है और ये महसूस करता है कि मैं ही गाड़ी हूं, राइट? अगर मैं उसको कहूंगा आपको मेरे घर में बहुत स्वागत है, आप प्लीज घर के अंदर आइए, वो कहेगा मैं घर के अंदर नहीं आ सकता हूँ। मैं घर के अंदर क्यों नहीं आ सकते? बोला नहीं, मेरी गाड़ी कैसे आएगी? नहीं, गाड़ी को थोड़ी ना आने के लिए बोल रहे हैं, हम तो आपको आने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ड्राइवर के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है, वो ड्राइवर जो है गाड़ी में बैठ कर दिन रात वो बैठता है तो समझता है वो ही गाड़ी है, और फिर वो महसूस करता है मैं घर के अंदर कैसे जा सकता हूँ, वहां तो स्टेप्स है, मेरी गाड़ी कैसे जाएगी? तो ऐसे ड्राइवर को हम कैसे मदद कर सकते हैं? उसको हम बहुत प्यार से कहेंगे, है ना, और ये दरवाजा खोलकर हम उस ड्राइवर से कहेंगे कि आप बाहर निकलो, राइट? और जैसे वो ड्राइवर बाहर निकलता है वो इतनी स्वतंत्रता का फील करता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हमने अपने आप को देह समझा और 24 घंटे इस देह के संबंध में अटके रहे, राइट? मेरा नाम, मेरा पोस्ट, मेरा पोजीशन, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा भाषा, मेरा देश, और इसमें हम इतने अटक गए। लेकिन जैसे हमें समझ में आता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो सबसे बड़ा फायदा इतनी स्वतंत्रता का फील होता है, राइट? इसीलिए जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति और वैसे ही हमारा सृष्टि बनता है। तो अगर हमारे लिए हम एक अच्छा दुनिया को डिजाइन करना चाहें तो आज से हम एक बहुत सुंदर स्मृति को लेकर आए कि आई द बीइंग इज ए नेक्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप इज मैं आत्मा हूं। सेकेंड स्टेप इज बी, ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगा? जैसे हमको उनसे बहुत दुआएं मिलती है, लेकिन राजयोग में ये कहा जाता है आत्मा के माता पिता, इनको बहुत प्यार से परमात्मा कहते हैं, हम अपने मन को जब उस परमात्मा पर लगाएंगे तो नेचुरली परमात्मा से हमको दुआएं मिलेगी, राइट? इसे यहाँ पर सर्व आत्माओं के पिता उस परम ज्योति आत्मा को जो सर्व धर्म मान्य है उनका बहुत स्नेह और प्यार से बाबा कहते हैं। और सी, हमारे जीवन में क्लियर और क्रिएटिव बनने के लिए परमात्मा के साथ योग अर्थात संबंध जोड़ना अर्थात कनेक्शन। जैसे हमारे जीवन के डिजाइन के लिए A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा एंड C फॉर कनेक्शन, ये थोड़ा सा हमें अभ्यास करना होगा। तो द साइंस ऑफ वेलबींग में हमने सारे सब्जेक्ट को कवर किया। मैं 1 मिनट के लिए मैं रिवाइज करता हूँ उस पूरे प्रोसेस को, राइट? द फर्स्ट वन जो था वो था मैकेनिक्स, जहाँ पर हम मन में जितने सारे विचार चल रहे हैं उसको हम स्टेबल कैसे करें। दूसरा सब्जेक्ट जो आज हमने देखा इस इंजीनियरिंग ड्राइंग, मन की भाषा चित्र है। तीसरा सब्जेक्ट जो हमने देखा इस सॉन्ग, हम अपने स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड, तो मन को कैसे शक्तिशाली बनाए, अच्छा चित्र बनाए, और एकाग्रता के द्वारा मन शक्तिशाली बनता है। चौथा सब्जेक्ट हमने देखा इस फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? जैसे पानी जब शांत होता है तो हमारा जीवन का लक्ष्य मिलता है, और जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम की हमको चाबी मिल जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने देखा HMT, है ना? वो हमने देखा कि हमारा लक्ष्य बहुत होलिस्टिक होना चाहिए, हैप्पीनेस आ जाएगा।
फिर हमारा जीवन मीनिंगफुल होना चाहिए और हमारे जो वाणी, वचन, कर्म और संकल्प बहुत मधुर होना चाहिए, राइट। फिर हमने डिजाइन को देखा। अब डिजाइन में हमने ABC को देखा, राइट। A फॉर पापा, अब लास्ट एंड दैट इज प्रोडक्शन, राइट। पे काम करते हैं, तो चलिए अभी हम ये राज्यों का अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास करते सागर के किनारे चलते हैं। बहुत अच्छा लगता बताते हुए। हमारे घर के नजदीक एक सागर का किनारा है, सागर का तट है, अरेबियन सी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए और सागर के किनारे में हम जाते हुए हम इस राज्यों का अभ्यास करेंगे। मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है। ओम शांति। आज प्रकृति के सुंदर सानिध्य में सागर के किनारे हम राज्यों का अभ्यास करेंगे। राज्यों में हम अंदर की प्रकृति को महसूस करते हैं कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और आत्मा के अपना स्वधर्म, अपना आत्मा का अपना गुण, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप को महसूस करेंगे। और दूसरा स्टेप, हम सर्व आत्माओं के पिता उस परम ज्योति परमात्मा जो ज्ञान के सूर्य हैं, प्रेम के सागर हैं, शक्ति के स्रोत को मन से याद करते हुए वो वाइब्रेशंस लेंगे। फिर हम इस प्रकृति के पांचों तत्वों को ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे। विश्व के सर्व आत्माओं को हम सकाश देकर आज हम राज्यों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मैं इस विशाल सागर को देख रहा हूँ। भले सागर में कितनी भी लहरें क्यों ना हो, लेकिन सागर की गहराई में संपूर्ण स्थिरता और शांति है। अच्छी बात है। मेरे मन में उठने वाले संकल्पों की लहरों को मैं साक्षी होकर देखता हूँ और धीरे धीरे एक अंतर की यात्रा के लिए प्रकृति के बीच में मैं एक छोटा सा सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं स्थित प्रज्ञ हूँ। हलचल के समय अचल अडोल हूँ। मैं संपूर्ण स्थिरता को महसूस कर रहा हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। स्वयं के प्रति प्रेम, मेरा परिवार, देश एवं विश्व के समस्त आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करता हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व, धरती,
जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनके प्रति कृतज्ञता की भावना मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे हर परिस्थिति को सामना करना या सहन करने की मुझ में असीम शक्ति है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। I am feeling very light, relaxed, yet powerful. मैं बहुत हल्का एवं तनाव मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं अपनी मन की आंखों द्वारा उस परम ज्योति परमात्मा को देखता हूँ जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, शांति के सूर्य, प्रेम के सागर और शक्ति के स्रोत हैं। उन्हें बहुत स्नेह और प्यार से मैं याद कर रहा हूँ। जैसे सूर्य का प्रकाश इस धरती पर पड़ता है, उसी तरह ज्ञान सूर्य परमात्मा से शांति, प्रेम और शक्ति के प्रकंपन मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। मैं आत्मा एकदम शांत, स्थिर, संपूर्ण सुरक्षित और सुखदायी महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं क्या करा रहा है। In the presence of my Supreme Father, I experience myself to be very safe, secured, and a feeling of well-being. परमात्मा से शांति, प्रेम और शक्ति के प्रकंपन इस विश्व के सर्व आत्माओं पर पड़ रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों तक पहुंचकर उन्हें पावन बना रही है। दिल से मैं परम पिता उन्हें शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। क्षितिज में सूर्यास्त को अब मैं देखता हूँ। एक नया सूर्योदय जरूर होगा। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक नया सवेरा जरूर आएगा। One day everything would become okay with positive health, healing and well-being. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Dr. E.V. Swaminathan. Am I audible, sir? Thank you, Dr. E.V. Swaminathan. You have rightly said that controlling our mind, body, and soul is important for a balanced living. You very well taught us the essence of being positive, purify in thought. Negative thoughts not only stress us out, but also take away our positivity. I think we will take a cue and follow this advice in our day-to-day life. We will try to release negativity from our minds and enhance positive well-being, and for that practice of meditation is must. Before we proceed, we will take a short lunch break. We request all of you to rejoin the event at 2 p.m. There is some technical issue, so there is a break. Technical team will resolve it in break time, I'm sure. So before we proceed further, we will take a short lunch break. We request all of you to rejoin the event at 2 p.m. Thank you.
Hello. Hello. Yes, sir. Check, sir. Sir, was that audible? Yes, ma'am, fine. I think it's time Okay, for sir. lunch break now. I request all participants to leave, and there were a lot of technical issues because everybody was muting all. So please make sure in the next session we'll try to resolve all these issues, and we'll be back at 2 p.m. Thank you all. Please leave the meeting now. Thank you. Thank you, sir. Sir, will there be a new invite link? Yes. Hello. Yes, sir. Arif? Yes, Angan. Arif? Yeah, continue. वो 2 बजे क्या इसलिए गाना है क्या?
चिंटू है चिंटू।